द स्कोप एंड लिमिट ऑफ गवर्नेटोरियल डिस्क्रिप्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक थिंकर आते हैं, वॉल्टर बेजहॉट। ऑब्जर्वेशन दैट ब्रिटिश मोनार्क लैक्स वीटो पावर। ध्यान रखना बेटा, किसकी बात कर रहे हैं? ब्रिटिश मोनार्क की। क्या उसके पास कम है? उसके पास वीटो पावर नहीं, लैक्स वीटो पावर। कौन? ब्रिटिश मोनार्क। इवन टू एक्सटेंड द साइनिंग हर ओन डेथ वारंट, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ साइनिंग हर ओन डेथ वारंट, पर वो साइन नहीं कर सकता। कैप्चर्स द डेमोक्रेटिक एक्सपेक्टेशन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैज नो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल अथॉरिटी। हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशन हेड है, उसके पास कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है। This insight help illuminate present day debates surrounding the power of Indian governor under Article 200, whether ambiguity regarding the discretion has repeatedly strained center-state relations. The Supreme Court recent advisory opinion seeks to clarify these powers, but the implications reveal unresolved tension between the constitutional intent and political practice. Historical evolution of the Constitution under the Government of India Act 1935, governor possess wide discretionary powers, including the ability to assent, withhold assent or return the bill. बिल के ऊपर अपनी सहमति भी दे सकता है, बिल को वापस भी कर सकता है। However, the Constitutional Assembly deliberately moved away from this colonial arrangement while shaping the draft Article 175. Now, Article 200 है आजकल, इसको कहते हैं the framers detected references to discretion. Discretion मतलब अपनी मर्जी है। They intended the governor to function like a constitutional monarch. तो उसको एक constitutional monarch की तरह, they intended the governor to function like a constitutional monarch. संवैधानिक हेड होगा वो, constitutional monarch की तरह वो बिहेव करेगा। The role was to be largely ceremonial, सिर्फ ceremonial रोल रहेगा उसका, operating on the aid and advice of the elected council of minister. मंत्रियों की सलाह पर काम करेगा। Despite this vision, political realities such a coalition instability and party realignment have kept the question of gubernatorial authority somewhat unsettled. Judicial approach and review of discretion. In the recent advisory opinion, Supreme Court examined whether Article 200 allow implied discretion, whether courts may impose timeline for gubernatorial decision, whether inaction is judicially reviewable. Inaction, बिल के ऊपर कोई साइन नहीं करें तो क्या जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है? वही जिसको मैंने कहा कि तुम मेरे इन्फीरियर हो, तुम मुझे डायरेक्शन कैसे दे सकते हो? हाउ कैन यू गिव डायरेक्शन कि मेरे को 3 महीने के अंदर बिल के ऊपर साइन करना होगा? मेरे बाप थोड़ी हो तुम, है ना? आई एम द सुप्रीम, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हूं, एक राजा की तरह बिहेव करता हूं। प्रधानमंत्री भी मेरे लिए काम करता है। जुडिशरी एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, बट इट डजंट मीन कि तुम मेरे को डायरेक्शन देने लग जाओ। The court concluded governor indeed has discretionary choices regarding assent. Court cannot impose mandatory timeline 3 महीने। ये तुम डायरेक्शन देने वाले कौन होते हो भाई? Judicial review is confined to instances of extreme and unexplained delay. The reason reviews discretionary space that the framers had intentionally diluted. The court further argued that the anti-defection regime ensures the legislature and cabinet move in the tandem, reducing situations whether bill contradict executive intent. Argued that the anti-defection regime ensures the legislature and cabinet move in the tandem, reducing situations whether bills contradict executive intent. अब यहाँ पर हम लोग ये मानते हैं कि जब से दल बदल का प्रोसेस शुरू हुआ, उसके लिए बिल आए, उसके बाद में आए, तो उस मामले के अंदर कई सारी चीजें ऐसी थी जिनके ऊपर एक बार निगाह मारे जाना जरूरी था। गवर्नर को ये अथॉरिटी देना जरूरी था, क्योंकि वहां पर अल्टीमेट डिसीजन जो था वो गवर्नर के माने गए। कौन किस पार्टी में जाएगा तो अल्टीमेट डिसीजन है, तो उसमें कम से कम स्टेट से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि वो गवर्नर को ये ऑर्डर देगी कि इस पार्टी ने पार्टी बदली है या नहीं बदली है। तो गवर्नर उस केस में हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि गवर्नर पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होते, क्योंकि जिस स्टेट में सरकार है उसकी स्टेट का ऑपोजिट जो रूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी है उसका गवर्नर होता है। वो बायस नहीं होते, मानते हैं बायस हो सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, बट हम एक फेज से क्रॉस कर रहे हैं। हर कॉन्स्टिट्यूशन में फेजेस आते हैं। 2000 से पहले या 2010 से पहले के फेजेस कुछ और थे। हम नहीं मानते कि 1989 या 1984 तक फेज एक और था, 84 से लेकर 90 तक का एक और फेज था, 90 से लेकर 1998 तक एक अलग फेज आया,
1999 से लेके 1998 से लेके 2014 तक एक अलग फेज था, 2014 से 2025 एक अलग फेज चल रहा है। तो कई सारे फेजेस आते हैं, उसमें हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इवन लेजिस्लेटिव बॉडीज भी कई सारी चीजों में मैच्योर होती हैं, सीखती हैं, ठोकरें खाती हैं। हम लोगों ने भी कई सारे ठोकरें खाने के बाद 2025 में पहुंचे। उसमें सबका रोल था, उसमें जुडिशरी भी हमारी इमेच्योर थी। हम लोग पहले पहले के डिसीजन में जुडिशरी को देखते हैं तो जुडिशरी भी लगता है अभी सीख रही थी। फिर हम लोग उसमें चेंजेस देखते हैं जब वो केशवानंद भारती केस आता है या फिर जब बाकी के केसेस आते हैं, फिर लगता है कि हाँ जुडिशरी अब धीरे धीरे मैच्योर होने लगे। फिर मिनर्वा मिल केस है, उसके बाद से कई सारे केसेस के बाद लगा कि हाँ ये सब सीखने का प्रोसेस है। हम जिस फेज से गुजरे, हो सकता है कि आज हम लोग ऐसे गवर्नर ढूंढें जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो या मिल रहे हो। आने वाले दिनों में हो सकता है कि गवर्नर और थोड़े मैच्योर हो जाए, सरकारें और मैच्योर हो जाए, डेमोक्रेसी और थोड़ी मैच्योर हो जाए। तो एवोल्यूशन है, जब वो जानवर करते हैं, इंसान ही करते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करती है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन भी मैच्योर होता है, ऑर्गेनाइजेशंस भी, उससे जुड़ी हुई जो बॉडीज होती है वो भी धीरे धीरे करके मैच्योर होती है। तो कल अगर ये फेज आ जाएगा फिर क्या करेंगे, इससे बेटर फेज आएगा कल को, तो फिर क्या होगा। ऑब्वियसली हम लोग ग्रो कर रहे हैं, ग्रेजुअल प्रोसेस है। However, this overlooks scenario where coalition government shift. अब यहां पर एक सरकार किसी और पार्टी की थी, दो पार्टी मिलकर सरकार चला रही थी, उसमें से एक पार्टी टूट गई, दूसरी पार्टी के साथ मिलकर उसने सरकार बना ली। ऐसी कंडीशन में वी कांट एक्सपेक्ट कि गवर्नर एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंगली काम करे। महाराष्ट्र के एग्जांपल अगर आपको याद हो तो वहां पर अप्लाई कर सकते हैं आप। द न्यूली एडमिनिस्ट्रेशन रिकंसिडर बिल पास अंडर द प्रीवियस डिस्पेंशन। तो पुरानी सरकार कुछ और बिल पास करके गई थी, साइन नहीं किए थे, गवर्नर को आप कुछ और डायरेक्शन दे दें, ये भी केसेस है ना, तो ये भी इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। N. Rao, the constitutional advisor, has anticipated such shifts and warned that legislative intention cannot be presumed stable. Furthermore, even when advice is unconstitutional, mechanism already exists, such as Article 356, making wide discretionary powers unnecessary. Political context and repeated frictions. Expanded discretion poses challenge in political environment where governors are often perceived and aligned with the union. Soli Sorabji warned that the office risks becoming a destination for retired and politically weakened individuals, affecting neutrality. Historical examples affirm misuse. Former Karnataka Chief Minister Ramakrishna Hegde documented a long list of Bill 74 awaiting presidential assent for years, some as long as 7 years, creating an indirect veto through indefinite delay. मानते हैं कि जो गवर्नर्स होते हैं ये पॉलिटिकली रिटायर्ड आदमी होते हैं, जिनको सीट नहीं मिली, जो इररिलेवेंट हो गए, या जिनका कोई कर्ज उतारना था पार्टी ने ना, या फिर ये कि जो नाराज चल रहे थे उनको कहीं ना कहीं सेटल कर दिया। मानते हैं ऐसा होता है। बट हम लोग हेगड़े साहब की ये जो बुक है, कर्नाटका के जो रामकृष्ण हेगड़े थे, उन्होंने 74 ऐसे बिल बताए थे जो प्रेसिडेंट असेंट के लिए पेंडिंग पड़े थे। प्रेसिडेंशियल असेंट फॉर ईयर्स, सम एज लॉन्ग एज 7 years, क्रिएटिंग इनडायरेक्ट वीटो थ्रू indefinite delay, लंबे टाइम तक डिले चल रहे थे। रिस्क ऑफ ओवर एक्सपेंसिव डिस्क्रिशन बाय वैलिडेटिंग implied gubernatorial discretion while limiting judicial scrutiny and the court's view risk, allowing governor to influence legislative outcome without accountability. अब स्टेट गवर्नमेंट कोई भी बिल पास करे, गवर्नर पॉलिटिकली मोटिवेटेड आदमी अगर बिल के ऊपर अपनी सहमति नहीं देगा तो क्या होगा फिर। एक एस्पेक्ट, क्रिएटिंग अ पैरेलल अनइलेक्टेड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। एक सेकेंड, देन उसके बाद क्रिएटिंग अ पैरेलल अनइलेक्टेड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। तो एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है, मैं सरकार हूं, मैं सीएम बन के आया, मेरे को स्टेट की जनता को जवाब देना है, मैंने बिल क्यों पास नहीं किए, कोई लॉ पास नहीं हुआ। गवर्नर की मर्जी थी, मैं अपनी जनता को कैसे समझाऊंगा कि गवर्नर ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर मेरे बिल पास नहीं किए थे। एक दूसरा एस्पेक्ट। तीसरा, और वो आदमी जो गवर्नर है उसको किसी को जवाब भी नहीं देना, ना प्रेसिडेंट को किसी को आंसर करना, ना गवर्नर को किसी को आंसर करना। देन अंडर डिटरमाइनिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू इट। एक और पार्ट, इस केस में गवर्नर की पावर प्रेसिडेंट से ज्यादा हो जाती है। ठीक, कैसे हो जाती है? इन केस पार्लियामेंट ने बिल पास किया और प्रेसिडेंट ने उस बिल के ऊपर साइन नहीं किए, तो माना यह जाएगा कि प्रेसिडेंट मिसयूज कर रहे हैं
या कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए प्रोविजन है, पर गवर्नर को स्टेट गवर्नमेंट रिमूव करने का ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं। ठीक है, तो वहां पर प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, उनके अगेंस्ट इंपीचमेंट मोशन लाके प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, पर गवर्नर के केस में ऐसा नहीं हो सकता, तो गवर्नर की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। अंडरमाइनिंग द सुप्रीमेसी ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू इट। Doctrinal uncertainties remain, particularly given in the inconsistencies between the advisory opinion and the prior judgment. This ambiguity could invite broader claims to discretion unless further constitutional amendments clarity lay down boundaries. The way ahead, timelines and clear constraints. The predictable federal system requires fixed constitutional timelines. कि constitutional timelines fix होनी चाहिए, मानते हैं एक्सपेक्टेड है, बट होगा नहीं ऐसा। टू असेंट और प्रिवेंट मिसयूज बाय डिले, स्ट्रिक्टली लिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर कंसिस्टेंट विद द फ्रेमर्स इंटेंट, रिफॉर्म इन द reforms in the appointment process to address concerns about neutrality and recommendation by the सेवरल कमेटीज। हम पंची कमेटी की, पंची कमीशन है, उसकी रिकमेंडेशन को डिस्कस करते हैं कि गवर्नर किसी भी कंडीशन में पॉलिटिकल मोटिवेटेड आदमी नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, और कम से कम उस स्टेट का नहीं होना चाहिए जिस स्टेट में वो अपॉइंट होकर आया, किसी दूसरी स्टेट से गवर्नर आएगा। तो कुछ कुछ रिकमेंडेशन तो एक्सेप्ट हो गई थी, सारी के ऊपर पॉलिटिकल पार्टियां खुद ही एग्री नहीं करेंगी। Such measures would reinforce parliamentary norms and strengthen the federal stability. Conclusion: the relationship between the legislature and constitution head is primarily preliminary. Democracy demands clarity and adherence to democratic accountability. Gubernatorial discretion under Article 200 remain a major unsolved constitutional concern. Without reforms, especially time-bound decisions are allowed. Narrow discretion. The governor office may continue to influence legislation in ways never intended by the framers and incompatible with the healthy federalism. तो बार बार फ्रेमर फार्मर आ रहा है, मेरे मुंह से निकल रहा है। That is under Article 201 Indian Constitution, which of the following are valid actions governor take regarding the state bill? Assent to the bill, withhold assent, reserve it for the presidential consideration, declare deem assent within 3 months. आंसर इसका ए ही है, बाकी आप जाके देख लेना। ये मतलब 1, 2 and 3, ये वाला तो कोर्ट मना ही कर रहा है, नहीं होगा। देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिमूव द गवर्नर डिस्क्रिशन पावर्स इन मैटर ऑफ असेंट टू। ये क्वेश्चन बेटा आप लोग जाके देख लेना, इसको कराने लगूंगा तो टाइम लगेगा। प्रैक्टिस के लिए मेंस का क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना मेंस में आंसर राइटिंग के लिए। ये आपको इंट्रोडक्शन आ गई, ये बॉडी हो गई, ये टिप्स दे दी आंसर कैसे लिखना है, ये भी टिप्स है आंसर कैसे लिखना है। अब ये आपका काम है, मेरा नहीं है। मेरा काम आपको समझाना था। पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन आप कंप्लीट कर चुके हैं और प्रिंटेड नोट्स आपके पास हैं और क्लास नोट्स आपके पास हैं। तो 2 तरह से नोट्स आपके पास है, प्लस करंट अफेयर का कंटेंट आपके पास है, प्लस आप टेस्ट दे चुके हैं। इट मीन्स सफिशिएंट कंटेंट आपके पास है। अब आपको क्लास करते हुए भी टाइम हो चुका है। इट मीन्स अब आप यू वुड बी एबल टू राइट अ गुड आंसर जिससे आपको अच्छे नंबर मिले। उसके लिए यू हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड, कौन सा वर्ड लिखना है कौन सा नहीं लिखना, ईच एंड एवरी पैरा, एवरी वर्ड शुड बी गोल्डन वर्ड, एवरी लाइन शुड बी गोल्डन लाइन, एवरी पैरा शुड बी गोल्डन लाइन। 4 पैरा आपको लिखने हैं। अगर 200 वर्ड्स का क्वेश्चन आता है तो 4 पैरा लिखने हैं। एक में इंट्रोडक्शन होगी, 2 पैर के अंदर बॉडी लिखी जाएगी, एक के अंदर कंक्लूजन होगा और कंक्लूजन में वो सब चीज़ें नहीं रिपीट होंगी जो आपने बॉडी में या इंट्रोडक्शन में लिखी हैं। तो देन अगर आपका आंसर कंप्लीट होता है, आंसर आपको पैरा में लिखने हैं, पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखने, पॉइंट 1 या 2 दे सकते हैं आप, और वो दे सकते हैं जहाँ पर कोई कमीशन आए हैं, रिकमेंडेशन है, पंची कमीशन है या केसेस हैं, आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। बट आपको पॉइंट्स में नहीं लिखना। बहुत इमेच्योर तरीका होता है पॉइंट्स में लिखने का, खास तौर के ऊपर यूपीएससी में। पीसीएस में चल जाता है पॉइंट्स वाला, बट अभी रिसेंट डेज में स्कूल्स में भी और कॉलेजेस में भी मना करना शुरू कर दिया उन्होंने, पॉइंट्स में मत लिखो। कोई फैक्चुअल डिटेल आपके पास है 1 2 3 करके पॉइंट बताने हैं वो कर सकते हैं, बट आपको आंसर जो है वो पैरा में ही लिखना है, पॉइंट्स में नहीं लिखना होता। नेक्स्ट